Just a minute, Vete. Let me find out my slide. I just need 2-3 seconds. Yes, this map, don't worry, I am not going to teach you geography or social science. This map is just required to help you to understand the location of China, India and Pakistan, because when neighborhood countries are asked, so then we should know about this geographical status also. So now as you can see, what has happened in the development path of India, now you can see size wise China is a very bigger country, much bigger than India as well as Pakistan. Okay, this is China. So India ke comparatively size wise, area wise, population wise even, it's quite large country. So now what happened when India got independence, India and Pakistan, they got independence in 47. Yesterday I told you China became a republic in 1949. Okay, so almost at the same time span, their developments started. So in India, we have started our development path with the help of mixed economy, coexistence of both private and public sector, and we started with 5-year plans. And our plans they started in 1951. Okay, so following the same pattern, Pakistan also adopted the path of planned development, and they started their first plan in 1956. मीन्स विद इन ए गैप ऑफ 5 years ओनली. ठीक है, दे कॉपीड इंडिया, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो जो चाइना है दैट स्टार्टेड इट्स प्लान इन 1953. ठीक है, 1951 इंडिया, 53 में चाइना, 56 में पाकिस्तान. दैट मीन्स विद इन 5 year span all countries started their development. But when we compare in the present, what do we see कि all the three they started with the same procedures almost, एक ही तरह से start किया. But in the present time, what do we see? China has gone far ahead of India as well as Pakistan. So India is at second place. We can compare if we want to compare. तो चाइना आउट ऑफ दीज थ्री, चाइना इज नंबर 1, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान नंबर 3. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में 2015 में this planning process that was brought to an end, this procedure of planning commission and plans, that was eliminated, and in place of that now we are having नीति आयोग. ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर में, नीति आयोग इज देयर, और जो प्रोसेस ऑफ द प्लान्स था दैट वाज ब्रॉट टू एन एंड. एंड बिकॉज इट वाज नॉट गिविंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स एज डिजायर्ड, जो भी टारगेट्स सेट होते थे उतना ये काम नहीं हो पा रहा था अंडर दिस, ड्यू टू द वी कैन से दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑफिसर्स भी कह सकते हैं, या प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लीमेंटेशंस कीपिंग इन द वास्ट साइज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या और भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स वर देयर. देन डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स वर देयर. तो मतलब डिजायर्ड टारगेट्स दे वर नॉट गेटिंग अचीव्ड. तो आफ्टर ए थॉट अपॉन स्ट्रेटेजी, दिस 2015 में प्लानिंग कमीशन का काम हो गया खत्म इंडिया में. बट द प्लान्स दे आर स्टिल गोइंग ऑन इन चाइना एंड पाकिस्तान. वो अपना किए हुए हैं, दे आर कंटिन्यूइंग. बट हमारे कंट्री में ये खत्म हो गया. इन प्लेस ऑफ दैट वी आर हैविंग नीति आयोग. ठीक है, तो उसके बाद in the beginning we can say 1980s तक का decade आते आते all the three countries they were having more or less they were at the same path. एक ही जैसी इनकी ग्रोथ हो रही थी, एक ही जैसा इनका डेवलपमेंट हो रहा था. बट स्ट्रेटेजिक चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर 1980s. तो 80s के बाद आप देख लो हाउ मच टाइम हैज पास्ड, 80s टू 90, 10, 20, 30, मतलब 40 years हो गए आज 2020 को ले, तो 80 से लेके. सो विद इन दीज 40 years lot of changes have taken place in the process of this development, especially industrialization, services sector, इवन इन एग्रीकल्चरल फील्ड. तीनों कंट्रीज का अलग अलग सिस्टम हो गया और तीनों की जो ग्रोथ है वो अलग अलग हो गई. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट द बिगनिंग. यहाँ पे यू कैन गेट द क्वेश्चन कि इन विच ईयर प्लान्स वर स्टार्टेड इन इंडिया, 51, चाइना में 53, पाकिस्तान में 1956 में. ठीक है, ये मेन काम की बात है यहाँ पे. उसके बाद है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइना, जो एक पेज दिया हुआ है ना, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. चाइना से रिलेटेड 4-5 headings are given. So they are just giving us the background to understand the level of development and the path of development. कि वहाँ पे क्या किया गया, what was adopted, which programs were adopted, which led to growth in China, या जो भी status है उनका. तो historical background तो I have already told you कि 49 में it became Republic of China after a civil war. उसके बाद geography दिया हुआ है कि geography में area देखना है. area wise एशिया में सबसे बड़ा country है. एशिया कॉन्टिनेंट को अगर देखें
और साइज वाइज क्या दिया हुआ है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर कनाडा एंड रशिया। तो यहाँ पर कनाडा का तो मैंने नहीं दिया है, पूरा मैप नहीं लिया है। तो रशिया सेकंड है एरिया वाइज कंट्री, कनाडा एरिया वाइज नंबर 1 के ऊपर है, और चाइना एरिया वाइज जोग्राफिकली नंबर 3 के ऊपर है, ठीक है। और जो चाइना का ये जो अपर पार्ट है, ये बहुत ही, अगर आपको याद हो तो अपनी इन जूनियर क्लासेस यू हैव डन दिस इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये आपने किया हुआ है। तो ये जो अपर पार्ट है, इट इज़ वेरी हैविंग वेरी लेस टेम्परेचर, कोल्ड रीजन एक तरह से कह सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल और उसमें सब ट्रॉपिकल में इसका काफ़ी सारा ये जो अपर पार्ट है। मंगोलिया भी चाइना ने ऑक्यूपाइड ही किया हुआ है, मंगोलिया का काफ़ी हिस्सा भी चाइना ने अपने कंट्रोल में इलीगली किया हुआ है। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जो वर्किंग सिचुएशंस हैं काम करने की, एग्रीकल्चर की स्पेशली, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं है। ऑल दो एरिया इज़ लार्ज, बट यहाँ पे उस एरिया में काम ज़्यादा नहीं हो पाता है ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशंस, ठीक है। तो उसके बाद है पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज, ये दीज आर ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। तो पॉपुलेशन तो यू नो वेरी वेल, एट प्रेजेंटली चाइना इज एट नंबर 1, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अप्रॉक्सीमेटली 142 करोड़ के आसपास अराउंड दिस कंट्री हैज़ इट्स पॉपुलेशन, एंड बीइंग फॉलोड बाय इंडिया। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 135 या 137 करोड़ के आसपास है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि चाइना के बाद विद इन 20 to 30 ईयर्स इंडिया विल सरपास चाइना विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। चाइना हो जाएगा नंबर 2 एंड इंडिया विल कम एट नंबर 1 प्लेस। रीजन क्या है? रीजन यू नो वेरी वेल कि रीजन ये है कि इंडिया में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन दैट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना, ठीक है। तो इंडिया बाद में नंबर 1 बन जाएगा, बट राइट नाउ चाइना इज एट नंबर 1। उसके बाद है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेजेस है यहाँ पे? Actually, while I was reading this lesson, so I also started making some research or study. तो I was also surprised कि यहाँ पर जो language है, साइनो टिबेटन languages family की languages बोली जाती हैं। जैसे हम इंडिया में कहते हैं ना, जैसे साउथ इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, नॉर्थ इंडिया में अलग अलग है, मतलब वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर देयर। तो इन द सेम मैनर इन चाइना ऑल्सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। एथनिसिटी जैसे हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और इधर पंजाब हरियाणा के लोग, डिफरेंट उनकी एथनिसिटी है ना, फिजिकल फीचर्स से पता चल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे वैरायटी ऑफ एथनिसिटीज ऑफ पीपल दे आर लिविंग एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। और जो प्रोमिनेंट है जो लैंग्वेजेस हैं, दे बिलोंग टू साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। नंबर 2 के ऊपर है ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस, और उसमें तकरीबन 300 लैंग्वेजेस हैं। मतलब 300 से प्लस माइनस भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 300 लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं और लैंग्वेजेस हैं विच आर स्पोकन हियर इन चाइना। और जो नंबर 1 के ऊपर है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, और उसमें आ जाता है मेन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज द मेन लैंग्वेज। और यहाँ पर जो है ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस में, इसमें आ जाती है मेनली मैंडरिन लैंग्वेज। आपने पढ़ा होगा नेट पे इधर उधर पढ़ते हुए। तो मैंडरिन इज द मेन चाइनीज लैंग्वेज, तो यहाँ पे बोली जाती है या समझी जाती है मेजोरिटी ऑफ पीपल। तो उसके बाद है इकोनॉमी, है कि यहाँ पे इकोनॉमी में क्या रहा है। इंडिया हैज बीन द, मैम रिकॉर्डिंग इज टेकिंग प्लेस ना? यस मैम, यस मैम। मैं ऐसे ना हो मैं सारा लेक्चर बोल दूँ और रिकॉर्डिंग ना हो। अच्छा, मैम हो रही है रिकॉर्डिंग, ओके इट्स ओके, गोइंग फाइन ऑन। फाइन। तो इकोनॉमी वाइज बेटे यहाँ पर क्या रहा है रीजन, कि चाइना हैज रिमेन्ड अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। But in comparison, India has always been, after independence, we are always been a democracy in the world, largest democracy in the world. ठीक है। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वन पार्टी, दैट इज द रीजन बिकॉज दे हैव ऑलवेज डिक्टेटेड देयर टर्म्स टू देयर इंडस्ट्रियलिस्ट, टू देयर फार्मर्स, टू देयर people working in different sectors. So they have a strict command over people. They can dictate their rules, they can get their orders implemented in the right spirit in whatever manner they want. So that is why that is also an important reason. But the same thing is not here in India. Here rules or orders cannot be commanded on people because our country is a democracy. Strictly no one can compel anyone. ठीक है, गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, बट गवर्नमेंट जबरदस्ती लोगों से डिजायर्ड काम नहीं करवा सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे कंट्री का, ठीक है। तो इस करके जो हाँ वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर्स हैं, वर्किंग इन सर्विसेज सेक्टर, वर्किंग इन इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर, डिफरेंट पीपल, दे आर
under the control of the government. And let me tell you one interesting fact also. वहाँ पे ये भी आपको याद होगा, लास्ट ये 3-4 months बैक व्हेन इंडिया और चाइना का वो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, तो एट दैट टाइम वेरियस न्यूज़ वर कमिंग रिलेटेड टू चाइनीज आर्मी। तो वहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है कि जितने भी लोग हैं उनको, स्पेशली कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, कंपल्सरीली दे हैव टू वर्क फॉर 2 years इन चाइनीज आर्मी। उसके बाद ही वो कोई जॉब कर सकते हैं। मतलब किसी ने किसी भी प्रोफेशन में वन हैज़ टू गो, बट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी प्रोफेशन कंपल्सरीली दे हैव टू सर्व इन द चाइनीज आर्मी। तो वो जबरदस्ती काम करवाते हैं उनसे। आप सोच के देखो ना, इज दिस थिंग पॉसिबल इन आवर कंट्री? हमें यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है रूल, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर क्यों ऐसे सब कुछ चल जाता है, क्यों? और उनको वहाँ सैलरी कम देते हैं, फैसिलिटीज कम देते हैं, काम उनसे पूरे 2 साल उनसे जम के काम लेते हैं, हार्डवर्क करवाते हैं। एंड दोज सोल्जर्स दे जस्ट क्राई, वो होम सिकनेस की घर जाना है हमने, मतलब एक तरह से जेल जैसा उनके साथ होता है सिस्टम। तो बट ये चीज़ें हमारे कंट्री में नहीं है, ठीक। ये भी एक रीज़न है कि लोगों से कैसे काम लिया जा सकता है। तो उसके बाद है देन दैट चाइनीज गवर्नमेंट इट स्टार्टेड, अब ये आगे जो पॉइंट्स है, दे आर गिविंग अस द पॉलिसीज विच वर अडॉप्टेड सिंस देयर इंसेप्शन ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम या कैंपेन। तो GLF फुल फॉर्म कैन बी आस्क्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम। Basically, it was started in 1958 and continued till 1962. 3-4 साल ही चला, बट उसमें भी उन्होंने अपना क्या स्ट्रिक्टली किया। बेसिक एम, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे, उनका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, माओ जे दोंग करके उनका नाम था, पॉपुलरली माओ ही बोला जाता है उनको। तो उन्होंने एक ये प्रोग्राम बनाया टू गिव ए बूस्ट टू देयर एग्रीकल्चर एंड टू देयर इंडस्ट्री। तो उसमें क्या किया, दोनों ही, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दे आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री फॉर डेवलपमेंट। दोनों के बिना कैनॉट बी रन सक्सेसफुली। तो क्या किया उन्होंने, इसमें एक बना लिया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल चेंज ला देना, नए सिरे से चेंज कर देना। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल बदल के रख देना है और इंडस्ट्रीज को बदल के रख देना है। अब बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी कोई शेप चेंज कर दी, कोई डिजाइन चेंज कर दिया। बदलने का मतलब सिस्टम में चेंजेस लेके आना। जो पुराना सिस्टम है उसको उलट पलट कर देना, एक नया सिस्टम एग्जिस्टेंस में लेके आना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को कहा कि कोलेक्टिवली फार्मिंग करनी है। इंडिविजुअल जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, फार्मर अपने अपने फार्म्स पे अपना काम करते हैं, अपनी ज़मीन पे काम करते हैं, बट वहाँ पे ज़बरदस्ती पीपल, फार्मर्स वर आस्क्ड टू डू देयर दिस एग्रीकल्चरल वर्क्स ऑन कोलेक्टिव फार्म्स, जिसको हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ वर्ड उसके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आपने सुना होगा। तो इकट्ठे काम करना है, फार्म्स को इकट्ठा कर दिया, साइज ऑफ फार्म्स बड़ा कर दिया। भी मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप कोई नहीं रहेगी। ऑल लैंड वाज केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट। और लोगों को कहा कि आपने इकट्ठे काम करना है। अब ये नहीं कहना कि ये फार्म मेरा है और ये ज़मीन मेरी, ऐसा कुछ नहीं, इकट्ठे ही काम करना है। तो ये किया गया। अब चाहे आप सोचो फार्मर्स वेदर दे लाइक डिड दिस थिंग और नॉट, कोई भी जो आदमी होता है वो काम करना चाहता है फॉर हिज ओन प्रॉफिट, फॉर हिज ओन बेटरमेंट, ठीक है ना। तो कोई भी हो, चाहे वो चाइनीज है, चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, चाहे कोई भी है। तो जब उनको फोर्सफुली व्हेन दे वर आस्क्ड टू वर्क कलेक्टिवली, तो पीपल इंटरनली तो दे डिसलाइक्ड बट दे वर कंपेल्ड, क्योंकि उनका कानून ही ऐसे था, तो जबरदस्ती उनको काम करवाया गया। और उसके लिए जो कलेक्टिव लैंड्स का जो फार्म्स बनाए गए, दे वर गिवन ए स्पेशल नेम एंड दैट नेम वाज कॉल्ड कम्यून। फार्म को ही नाम दिया गया कम्यून, बड़े बड़े फार्म्स को नाम दिया गया। तो ऐसे 1958 में इट इज रिटन देयर, कितने कम्यून बना दिए, अराउंड 26,000 के आसपास जो कम्यून थे वो बना दिए, और जिसमें सारे ही फार्मर्स कवर हो जाते थे। मतलब चाइना में वट एवर वॉज द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स, दे वर गेटिंग डिवाइडेड अमंग दीज फार्म्स। मतलब पूरे 26,000 पे काम करने में ही उनके सारे फार्मर्स कवर हो जाते थे, ठीक है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया गया, people were asked to open small scale industries in their homes। अब चाहे किसी को इंडस्ट्री का काम अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट दे वर आस्क्ड फोर्सफुली कि आप अपने अपने घरों में छोटी छोटी फैक्ट्री लगाओ, छोटे छोटे यूनिट्स लगाओ, अपने घर के पीछे आंगन में, बैकयार्ड में, जहाँ भी आपको जगह है, अपने हर एक पर्सन ने लगाना है। अब सोच के देखो, चाहे किसी का घर बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे उसके पास पैसे हैं नहीं है, बट एवरीबडी वाज आस्क्ड टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इन हिज होम।
जैसा भी वो कर सकता है। और उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी स्पेशल स्ट्रेस वाज गिवन, इट्स नॉट रिटन इन द बुक, यू कैन ऐड इफ यू वांट। तो स्पेशल दिस एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील फर्नेसेस। स्टील का बनाना जो होता है ना, स्टील से रिलेटेड काम है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग या स्टील से रिलेटेड जो भी आगे काम हो सकते हैं, स्टील के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। तो वैसे तो देखा जाए इट इज़ गुड थिंग कि भी स्टील, आयरन एंड स्टील हम कहते हैं ना, इट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, बिकॉज मशीनरी, होल ऑफ द मशीनरी गेट्स मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन एंड स्टील ओनली। तो उस एंगल से सोचा जाए तो दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज दे वर इनकरेजिंग देयर सेकेंडरी सेक्टर। But this program did not get very successful, did not meet its desired results, और ultimately 3-4 साल में, क्योंकि whenever people are forced to do anything, then they don't do things with whole heart and soul. अपनी मर्जी से तो कोई करे वो तो दिल लगा के करेगा, बट जबरदस्ती कोई नहीं करना चाहता ना, अपनी विशेष को एक तरफ करके। तो ये चीज़ें हुई भी 62 तक का टाइम आते आते ये फिर सारा मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि उनका डिजायर था। फिर वन अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस, वहाँ पे एक बड़ा ग्रेट फैमिन हुआ, लैक्स ऑफ पीपल, ये लिखा 30 मिलियन पीपल गॉट किल्ड इन दैट दोज फैमिन्स। तो उसमें एक तो नेचुरल रीजंस तो थे ही थे फैमिन के पीछे, ड्रॉट्स थे उसके करके हुआ, प्लस उसके बाद उनकी जो रॉन्ग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज थी माओ ने जो स्टार्ट की थी, दे वर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल्स थे एग्रीकल्चर के ऊपर, अब वो क्या होते हैं कि कहाँ पे क्या, कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, कौन से गवर्नमेंट को ऑफिस में वहाँ पे उनको ग्रेन मार्केट में कहाँ सेल करना है, उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो फैमिन का मतलब ये नहीं होता कि अगर बारिश नहीं हुई, नेचर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो फैमिन हो गया कि क्रॉप्स नहीं है। फैमिन का मतलब होता है इन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द मासेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब वो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नेचुरल रीज़न हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हो सकते हैं कि जब खाना पहुंचे ही ना, लोगों को मिले ही ना। आप सोच के देखो, हमें पंजाब में मान लो हमें यहाँ ग्रेन्स ना होते हो, साउथ से ग्रेन्स आते हो तो हमें आए ही ना, बारिश तो यहाँ खूब अच्छी भली हो रही है, सब कुछ ठीक है, बट हमें ग्रेन्स हम तक पहुंचे ही ना, तो ऑब्वियसली पंजाब में भी फैमिन जैसी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एज वेल एज नेचुरल रीजन, तो वहाँ पे फैमिन्स में भी काफ़ी पॉपुलेशन की डेथ हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस GLF प्रोग्राम। सेकंड वाज ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन, लेट मी शो यू लेटर ऑन, आई विल सेंड द पिक ऑल्सो, जस्ट ए मिनट। Yes, I just found out this detail, otherwise on net you can also see, you don't have to learn all these things, this is just for understanding purpose। तो इसमें क्या किया गया, जो माओ थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पे पार्टी और गवर्नमेंट एक ही चीज़ है, एक ही तरह का डिक्टेटरशिप है। तो वो सभी लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, अपनी पॉलिसीज़ को फोर्सफुली, ही वांटेड हिज पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल द पीपल। और जब लोग उनको नहीं मानते थे, जो लोग भी whosoever was opposing him, चाहे वो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन थे, चाहे वो पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी पब्लिक मासेस थे, तो जो लोग भी उनकी बातों को नहीं मानते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वट एवर पॉलिसीज ही ब्रॉट, whatever actions he took, they are known as this great proletarian cultural revolution। तो उसमें क्या है, as you can see in this, last में क्या लिखा हुआ है, this was very interesting, many people got killed, sometimes execution or harassment into suicide, seizure of property, hard labor, torture, imprisonment, public humiliation। मतलब जो लोग भी माओ की पॉलिसी से डिसएग्री करते थे, दे हैड टू सफर फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। पब्लिकली उनका इंसल्ट करना, उनको जेल में डाल देना, मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करना, या उनसे हार्ड लेबर लेना, उसी में उनकी डेथ हो जाती थी, या उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर सीजर का मतलब कब्जा कर लेना, एग्जीक्यूशन मतलब उनको फांसी लगा देना, उनको मार देना, हरासमेंट करना, इतना तंग करना कि वो सुसाइड ही कर ले। कहने का मतलब कि ईच एंड एवरी एफर्ट वाज मेड बाय माओ एंड हिज गवर्नमेंट टू ब्रिंग पीपल टू द लाइंस विच आर गिवन बाय माओ। भी मेरे मुताबिक काम हो, जो मैं चाहता हूँ सब उसको माने, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है उसको माने सारे। तो जब लोगों को इस तरह से होता था तो फिर वो मार दिए जाते थे। एंड लास्ट में क्या था, यू कैन सी दिस लाइन, schools and universities were closed with the college entrance exams cancelled,
स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया, क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में यंग पीपल दे आर द फ्रंट रनर्स इन द अपोजिशन, है ना, धरने आंदोलन करने में आगे होते हैं, तो उनको बंद कर दिया। ओवर 10 मिलियन अर्बन इंटेलेक्चुअल यूथ्स वर सेंट टू कंट्री साइड इन द डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट। नाउ इन योर बुक ओनली दिस पॉइंट हैज़ बीन गिवन कि जो अर्बन इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलेक्चुअल मतलब जो अर्बन एरियाज में पीपल दोज हु आर लिविंग एंड दे वर ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट प्रोफेशंस, पढ़े लिखे लोग जिसको बोल सकते हैं सोसाइटी के, तो उनको जबरदस्ती कहा गया कि आपने 2-2 साल कंट्री साइड मतलब जो चाइना के रिमोट विलेजेस हैं वहाँ जाके काम करना है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मेडिकल का जो बच्चे होते हैं दोज हु स्टडी, तो लास्ट के 2 इयर्स अप्रेंटिसशिप होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो किसी डॉक्टर्स के साथ किसी हॉस्पिटल में दे आर गिवन द ड्यूटी भी आपने 2 साल प्रैक्टिकली इनसे काम सीखना है कि जो पढ़ा है अब उसको करते कैसे है। तो अब वहाँ पे क्या कर दिया माओ ने कि सब लोगों को कहा जो जो भी काम कोई कर रहा है 2-2 साल वो चाइना के विलेजेस में भी सर्व करेगा। अब आप सोच के देखिए, एक किसी भी जगह पे हम रहते हैं खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ में, तो अब हमें कोई कहे कि दूर जाके वो जो हिमाचल के ऊपर पहाड़ी इलाकों में जाके गांव में रहो आप 2 साल, तो हम वॉलंटरीली वी विल नॉट लाइक दिस थिंग, किसी को भी ठीक नहीं लगेगा, मर्जी से चाहे चला जाए, बट कोई कंपल्शन में कोई कहे तो ये जबरदस्ती है ना। तो ये ऐसे ही माओ ने जो जो भी प्रोग्राम्स किए, जो जो भी एक्शंस लिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीपल टू हिज कमांड्स, तो दोज प्रोग्राम्स आर नोन एज ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। और इस काम में ही वॉज बींग हेल्प्ड बाय नेबरिंग कंट्री रशिया। चाइना का भी यू हैव सीन द मैप, तो उसका नेबरिंग कंट्री है ऊपर नॉर्थ वाली साइड पे, रशिया उसका नेबरिंग कंट्री है। तो रशियन गवर्नमेंट वाज आल्सो असिस्टिंग चाइना। बट लेटर ऑन क्या हो गया कि चाइना के साथ उनके बॉर्डर इश्यूज हुए, जैसे चाइना इंडिया के बॉर्डर इश्यूज हैं, तो ऐसे ही रशिया के साथ भी बॉर्डर इश्यूज हुए। तो फिर रशिया ने क्या किया, दे कॉल्ड देयर प्रोफेशनल्स बैक, अपने लोग जो भेजे थे वहाँ हेल्प के लिए, सर्विस देने के लिए, मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए, वी कैन से, अपने लोगों को वापस बुला लिया। मतलब रिलेशंस गॉट स्ट्रेन्ड, रिलेशंस खराब हो गए दोनों कंट्रीज के, और रशिया ने भी इस प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए जो जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे थे उन सबको वापस कर लिया। तो प्रोग्राम फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये तकरीबन 10 इयर्स चला, 1966 से लेके 76 तक। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, 49 में रिपब्लिक बना चाइना, 49 के बाद 53 में उन्होंने प्लान्स शुरू कर लिए, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का कब्जा शुरू हो गया, गवर्नमेंट की अथॉरिटी स्टार्ट हो गई। 58 में जीएलएफ प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद 66 से 76, मतलब उनके 76 तक अगर ध्यान से सोचें तो हर एक काम के ऊपर इन वन और द अदर वे देयर वाज टोटल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट। people were not having any liberty, people were not having any freedom to decide about their future, कि what they want to do, what they don't want to do, अपने लाइफ में उन्होंने क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, लोगों को कोई आज़ादी ही नहीं थी। तो इसका मतलब सारा कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के हाथों में ही था, ठीक। बट अगर कॉन्ट्रेरी टू दिस थिंग इफ वी कंपेयर इंडिया, तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, 47 से 51 में, 52 में पहली जनरल इलेक्शंस हुई, तो हमारे यहाँ रेगुलरिटी के साथ काम चलता रहा, ठीक है, एक्सेप्ट इन 1975 व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बाय मिसेज इंदिरा गांधी, ठीक है। चलो, एनी हाउ वी डोंट हैव टू गो टू पॉलिटिकल साइड, बट दिस इज द बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चाइना। उसके बाद है फिर उन्होंने क्या किया कि जब इतना सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करने के बाद भी उनका जो चाहते थे जितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वो नहीं हो पाया, तो देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रिफॉर्म्स। जब हम कोई काम करते हैं सोच के तो बढ़िया ही करते हैं, पर जब वो इतने साल लगाने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उनको लगा कि नाउ वी शुड ब्रिंग सम चेंजेस, कुछ ठीक किया जाए कि ये जो सिस्टम है, तरीका है, इट इज़ नॉट वर्किंग पॉजिटिवली, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, चाइना की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी रिक्वायर्ड हम चाहते हैं। तो देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रिफॉर्म्स एंड दे ब्रॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन देयर कंट्री इन 1978। आपको याद है इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, पॉलिसी में हमने किया, इंडिया में रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन इन 1991। आप देखो चाइना के कितने सालों के बाद अवर कंट्री स्टार्टेड दीज रिफॉर्म्स, बट चाइना को पहले ही समझ आ गई। अब देखो, आप ध्यान से सोचो, किसी अगर कोई गलती कर रहे हैं, एक तो होता है उसी गलत लाइन के ऊपर चले जाओ, हमारे कंट्री में यही हुआ, 91 तक आते आते पब्लिक सेक्टर का ही डोमिनेंस रहा, मतलब गलती का पता तो था बट उसको करेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो बट चाइना में ये चीज़, इट वाज अंडरस्टूड बाय देयर गवर्नमेंट,
चाहे डिक्टेटरशिप टाइप की है, बट स्टिल दे अंडरस्टूड कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ चेंज लानी चाहिए। तो दे इनिशिएटेड देयर रिफॉर्म्स इन 1978, ठीक है। इंडिया में शुरू हुए 1991 में, अभी बाद में पाकिस्तान का भी पढ़ेंगे, व्हेन डिड दे स्टार्ट। तो फिर क्या किया उन्होंने, स्लोली एंड स्टेडली दे स्टार्टेड। तो पहले क्या किया, इनिशियल फेज का मतलब शुरुआत में, इन द वेरी बिगनिंग व्हाट डिड दे डू, उन्होंने एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में, इन 3 चीजों को पकड़ा। सारी इकोनॉमी को ए टू जेड एकदम से कोई कहे कि सारी ओवरहॉलिंग कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेक्टर बाय सेक्टर दे स्टार्टेड। तो फर्स्ट दे स्टार्टेड इन एग्रीकल्चर। तो वहां पे क्या किया, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। जो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो उन्होंने पहले कलेक्टिव फार्म्स बना दिए थे, दे मेड दिस कम्यून्स। अब उनको लगा कि ऐसे लोग खुशी से काम नहीं करते हैं, हैप्पीली पीपल आर नॉट, फार्मर्स आर नॉट वर्किंग, उनको कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन कम्यून्स का सिस्टम को थोड़ा खत्म कर दिया। अब कर क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। पीपल वर अलाउड टू डू फार्मिंग इंडिविजुअली, सेपरेटली, अपने आप करें। बट सरप्राइजिंगली क्या किया उन्होंने, ओनली फॉर यूज एंड नॉट एज ओनरशिप। फार्म्स तो दे दिए लोगों को कि आप काम करो, बट उन फार्म्स की जो जमीन की, लैंड की जो ओनरशिप है, मालिकाना हक जो होता है, दैट वाज रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो जमीन है चाइना में, वो उसका मालिक उनकी गवर्नमेंट ही रहेगी। लोगों को डिवाइड करके दे दिए प्लॉट कि आप इस, ये आपकी जमीन है, आप इस पे काम करो, जो भी प्रॉफिट है वो आपका है, जितना भी गवर्नमेंट को देना है वो बता दिया, बट ओनरशिप, ओवरऑल ओनरशिप दैट वाज विद द गवर्नमेंट, ठीक है। और इस तरह से लोगों को फिर थोड़ा सा इंसेंटिव दिया कि भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप भी रख सकते हो आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो लोगों को ताकि थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। देन सेकेंड फेज में, लेटर फेज मतलब बाद में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले जो था 78 तक का टोटल, देयर वाज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वहाँ पे। जैसे अपने यहाँ हम लोग वर्ड यूज करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो वहाँ पे पब्लिक वर्ड नहीं यूज करते, वहाँ पे जो पॉपुलर वर्ड है टर्मिनोलॉजी, दैट इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, SOE। मतलब वही है जो हमारे यहाँ PSE वर्ड का मतलब है, ऐसे ही वहाँ पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो अब क्या किया उन्होंने, दे अलाउड प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ऑल्सो इन टाउनशिप्स एंड विलेजेस टू स्टार्ट देयर वर्क। भाई जो भी लोग इंडस्ट्रीज में, विलेजेस में, टाउन्स में, कस्बों में, सिटीज में अपना अपना काम करना चाहते हैं प्राइवेटली, वो कर सकते हैं। अब जब प्राइवेटली अलाउड कर दिया, तो नाउ कंपटीशन वाज बाउंड टू बी स्टार्टेड। अब तो कंपटीशन होगा कि जो काम पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, स्टेट के कंट्रोल वाली फैक्ट्री में हो रहा है, वही काम अपना प्राइवेट सेक्टर के पीपल वर आल्सो अलाउड। तो कंपटीशन स्टार्ट किया उन्होंने थोड़ा थोड़ा कि ताकि क्वालिटी वाइज, वेन एवर देयर इज कॉम्पिटिशन, ऑलवेज क्वालिटी इम्प्रूव्स। हमेशा वी शुड रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि बिना कंपटीशन के वी नेवर फील एनकरेजमेंट, हमें लगता ही नहीं है कि हमारा किसी से मुकाबला है। तो जब कंपटीशन होता है तो हमेशा क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की वो बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। तो ये उन्होंने कंपटीशन स्टार्ट करवाया। फिर उसके बाद ताकि क्वालिटी वाइज चीज़ें बढ़िया बने, रीजनेबल प्राइस हो उनका, तो वो इम्प्रूव किया। लेटर ऑन दे स्टार्टेड ड्यूअल प्राइसिंग। ये भी उसी से रिलेटेड है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ या मेंटेनेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्राइस सिस्टम्स। अब ये इसका मतलब है यहाँ पर कि जो फार्मर्स थे एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, मतलब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग प्लस एग्रीकल्चर के लोग, जो भी उनका इनपुट्स होते थे, जो भी इनपुट मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट, जो भी फार्मिंग से रिलेटेड रॉ मटेरियल, सीड्स, फर्टिलाइजर, जो भी खरीदना है, उसको कहा कि एक गिवन क्वांटिटी तक जो आप लेना है वो सरकार से लेना है, चाइना की गवर्नमेंट से लेना है। जो चाइना की गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया हुआ है, उस प्राइस के ऊपर आप परचेज कर सकते हैं एक गिवन % तक। उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो इनपुट्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, दे कैन बाय फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है। जैसे हम कहें कि सरकार की किसी दुकान से सामान लेना है, जो गवर्नमेंट का प्राइस है उसी पे लेना है, मान लो 20%, और बाकी का आप ओपन मार्केट से आप ले लो। ऐसे ही इनपुट्स को भी कहा प्लस आउटपुट्स को, कि भी जो भी आउटपुट होगी, फार्मर्स हैं तो उनकी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद आउटपुट, इंडस्ट्रीज हैं तो उनका जो भी फैक्ट्री का सामान है उसकी जो सेल है, उसका कुछ हिस्सा दैट वाज टू बी सोल्ड एट गवर्नमेंट प्राइस विच वाज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, उस प्राइस के ऊपर बेचना है। एंड रेस्ट ऑफ द आउटपुट दैट वाज टू बी सोल्ड एट ओपन मार्केट प्राइस। तो क्योंकि 2 तरह के सिस्टम रखे गए, 2 तरह का प्राइस वाज सिस्टम वाज एडॉप्टेड एंड मेंटेन, तो इसको ही कह दिया जाता है ड्यूअल प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स।
later on, as I said, ki I will send the pic also, because I think definition of special economic zone is not given in your book. I think so. दिया हुआ है तो वेरी फाइन, नहीं दिया तो वी कैन नोट डाउन दिस. तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कोई खास एरिया नहीं, कोई उसको किसी कंट्री में अलग नहीं कर देते. इसका मतलब सिर्फ है कि किसी प्लेस में, किसी सिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी एरिया में एक अलग जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए थोड़े से सेपरेट रूल बना दिए जाएं, गवर्नमेंट के अलग से रूल बना दिए जाएं. आपने कई बार ही सुना होगा, कई बार हम वर्ड सुनते हैं इंडस्ट्रियल एरिया. जैसे हम कहते हैं जलंधर में इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना में इंडस्ट्रियल एरिया, या अमृतसर में इंडस्ट्रियल एरिया. तो एरिया तो कोई अलग थोड़ी है, कोई दीवार बनाई है कि एरिया अलग कर दिया. उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उस एरिया में जो भी फैक्ट्रीज लोकेटेड है, जो भी वहाँ पे इंडस्ट्री का काम हो रहा है, वहाँ पे उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के रूल्स उनके थोड़े से इम्प्रूव कर दिए जाएंगे, चेंज कर दिए जाएंगे. इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जो लोग उस एरिया में फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको ज़्यादा चीप लोन भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं. जॉब क्रिएशन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट उनको मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकती है. कई बार उनको टैक्सेस में भी रियायत दी जाती है कि आप यहाँ पर ये फैक्ट्री शुरू करो, ये काम स्टार्ट करो. आपका जो अगर बाकी लोगों के ऊपर 10% टैक्स लगता है, तो वहाँ पर उस एरिया में अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो उनको टैक्स मान लो 7% लगाया जाए. तो लोग टैक्स बचाने के लालच में वहाँ पर काम लगाते हैं. या उनको जो पावर सप्लाई है, आई होप यू रिमेंबर, एक हमने टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्रियल सोप्स. तो किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चलाने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो उनको टैक्स में रियायत दी जाए, सेकेंडली उनको रेगुलर पावर सप्लाई दी जाए. ठीक है ना, उसमें कोई ब्रेक ना आए. तो पावर सप्लाई में कंसेशन, उसका मतलब रेगुलरिटी या उसको कम प्राइस के ऊपर देना, ये सारा कुछ किया जाता है. यहाँ जहाँ पे फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आओ यहाँ पर काम करो, आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी. तो कोई भी फैसिलिटीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का लालच सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता. तो उस एरिया को कहा जाता है SEZ. तो चाइना ने बहुत सारे, अपने पूरे कंट्री में, चाइना में बहुत सारी जगह के ऊपर ये स्पेशल जोन्स बनाए, और उनमें खास करके उन्होंने दे इनवाइटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि फॉरेनर्स आएंगे तो वो ज़्यादा अपने साथ फॉरेन मनी लेके आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे, तो उससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, काम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किए. तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये सिर्फ बैकग्राउंड है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. इसमें आउट ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच मे अपीयर इन द पेपर, in your final board paper, that is related to this GLF campaign. या आपको आ सकता है when did China start its reforms, ऐसे टेक्निकल्स है, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान. हमारा पाकिस्तान नहीं है, हमारा था. अब वो अपने आप को अलग मानते हैं, बट अगर इफ वी थिंक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, एंड आई होप यू ऑल शुड थिंक अबाउट दिस, दैट इज अखंड भारत. है ना, तो अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान हमारा ही है, राइट. तो अब जो, चलो अब टेक्निकली हम पाकिस्तान का समझ लेते हैं. तो वहाँ पर जब इंडिपेंडेंस उनकी हुई, तो दे अनाउंस्ड देयर कंट्री एज, एक मिनट, पाकिस्तान का मैप ले आए, थोड़ा सा कलरफुल सा लगेगा आपको. ये वाला, ये. तो जब उनका हुआ 14 अगस्त को, अपना वो फ्री हुए, फ्री तो नहीं, इंडिया से कट गए, तो उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अच्छा. अब फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर बांग्लादेश है, अर्लियर इट वाज आल्सो पाकिस्तान, इसको कहा जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान, ये वेस्टर्न पाकिस्तान, कंट्री एक ही था. तो उसके बाद 1971 में, मतलब ये दोनों कंट्रीज़ की आपस में नई सेटलमेंट हुआ, बिकॉज यहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, और यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, और जो सिंध लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज, और बलोची लैंग्वेज है, पठानी लैंग्वेज है, उन सबको इन्होंने दबाया, और उर्दू लैंग्वेज वाज स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. और यहाँ पर लोग जो थे वो उर्दू लैंग्वेज के साथ दे वर नॉट कंफर्टेबल. मोरोवर इनका जो रूल्स थे यहाँ पे, बड़ा मतलब लोगों के साथ ठीक इनका बिहेवियर नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिवली. तो 1971 में फिर बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिलिट्री, ये बांग्लादेश सेपरेट हो गया उनकी सिविल वॉर में. ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रूल रहा है वो मिलिट्री रूल रहा है. ऑल्दो दिखाने के लिए वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम से इलेक्शंस होते हैं, बट इफ़ यू एनालाइज देयर हिस्ट्री, तो उनका जो रूल है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही रहा है.
मतलब जैसे होता है ना, फिल्म के पीछे डायरेक्टर होता है और मूवी में हीरो हीरोइन आगे सामने सामने दिखते हैं, डायरेक्टर पीछे से उसको डायरेक्ट करता है, तो सेम वे यहाँ मिलिट्री ही डायरेक्ट करती है वहाँ की गवर्नमेंट्स को, तो मिलिट्री का ही ऑर्डर चलता है। तो ये सारा ऐसा सिस्टम रहा उनका। फिर ज्योग्राफी क्या है कि यहाँ पर टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर ईरान है, बाकी सारे ये गल्फ कंट्री, दीज कंट्रीज आर कॉल्ड गल्फ कंट्रीज, ठीक है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बट साइज वाइज इन कंपैरिजन विद इंडिया इट्स क्वाइट स्मॉल कंट्री, ठीक। और चाइना के मुकाबले तो ये ज़्यादा ही छोटा सा है हमारे हमारे सामने। तो ये है। फिर आगे इसका ये एरिया वगैरह दिया हुआ है। इट्स नो, देयर इज नो नीड टू लर्न दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितना एरिया क्या है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, भी एरिया कम है इनका। उसके बाद है लैंग्वेज और पॉपुलेशन। तो मेन मुस्लिम रिलीजन है, इस्लामिक टाइप की लैंग्वेज इनका है सारा सिस्टम, और 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इवन मोर देन 1/3, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यू विल बी सरप्राइज टू नो, इनकी जो पॉपुलेशन है तकरीबन दैट इज अराउंड 20 करोड़, मोर और लेस, मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में बोले तो 20 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। और हमारे यहाँ जहाँ पर जो है यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट, उसकी अपनी पॉपुलेशन 20-21 करोड़ है। तो हमारी एक स्टेट और ये पूरा देश दोनों बराबर है, और हमारी एक स्टेट को हमारा एक चीफ मिनिस्टर इज हैंडलिंग, टैकलिंग विद ऑल द थिंग्स, और ये इतने पॉपुलेशन को, इतना इनका प्राइम मिनिस्टर है, इतने इनके 4 स्टेट्स हैं, इनकी इतना सारा सिस्टम है, बट दे आर अनएबल टू कंट्रोल दीज 4 स्टेट्स। तो पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल कंट्री है ये, हमेशा से रहा है, ठीक है। और मेन इनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू एंड इंग्लिश, राइट। उसके बाद इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की नकल ही की है, तो इनका भी, इन्होंने भी, दे ऑल्सो अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट का। फिर इन्होंने क्या किया, वेरियस पॉलिसीज, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, 50s का डेकेड और 60s का डेकेड। तो तब इन्होंने क्या किया, वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। रेगुलेटेड का मतलब कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब पीपल वर नॉट गिवन फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में जो भी पॉलिसीज बनाई, उसमें मेनली क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज, और उसमें भी क्या, द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब टैक्स में कंसेशन देना, किसके लिए,